Hello, bankers. So, very good evening to all of you. Welcome back. So, welcome to JB CAB Prep. So, guys, in this particular session, we are going to discuss around our AFM Unit 8, which is all about Bill of Exchange. Okay. So, I hope सबने आपका इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वो आपका देख लिया होगा, ठीक है। सो अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिया है तो मैक्सिमम आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल प्रैक्टिस अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. So with the help of these particular question, we will try to build our understanding regarding the concept, or even you can check your progress as well, right? So bill of exchange, which is our unit number 8. तो we will start this particular one. Previous like इससे पहले के जो कंटेंट है या जो यूनिट्स हैं वी हैव ऑलरेडी डन विद दोज पर्टिकुलर वन. आई होप आप लोग रेगुलर बेसिस पे इनको देख रहे होंगे, ठीक है. एंड डू मेंशन इन टू द कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है. इफ यू लाइकिंग द content or if you like, please do share and subscribe with your please do share with your friends also, so they can also take advantages of these particular classes, ठीक है. And from next week onwards, I'm going to start or deliver IN IFS module wise content also. So जो compilation आपको दिए गए हैं, ठीक है. So we have already uploaded module wise compilation for all the 4 modules. So concept videos, please go through those particular one. Now we will start practice as well, right? So guys, we will start with very first question on your screen. So, which of the following statement is true regarding bill of exchange? So, I hope everybody is aware about what is bill of exchange. So, bill of exchange is a document which is drawn by the creditors. Okay, so let's say there is a sale agreement between two parties, party A and B. Okay? So, let's say party A is seller, okay? And party B is buyer, right? So in this particular case, seller is creditor and buyer is debtor, right? So this document or this note is generally being issued by the seller, ठीक है. So फॉर्मेट क्या होता है हमने समझा था, ठीक है. जैसे 2 months later pay me worth rupees this amount for value received, ठीक है. So 2 months later pay me or my order worth rupees 10 lakh 15 lakhs whatever the invoice value, ठीक है, to me or my order worth rupees 10 lakh 15 lakhs for value received, ठीक है. In this particular case we have 3 parties. One is drawer, ठीक है. So the seller is drawer and buyer is drawee, and there can be a third party also, that is known as payee, ठीक है. But in most of the cases drawer is the payee, right? So now the acceptance by the buyer is necessary in this particular case, ठीक है. In case of bill of exchange, acceptance by buyer is necessary, ठीक है. And here we have a seller as well, right? So now we'll quickly go through the statement, ठीक है. So you have to find out the correct statement regarding the bill of exchange. So it is a demand instrument payable only at site, ठीक है. Not only at site, ठीक है. So we have Hussein's bill of exchange, we have demand bill, we have different bill. So we cannot say only, ठीक है. So this is wrong. It is a negotiable instrument, true, that can be transferred to third party. This is correct, ठीक है. So bill of exchange, which is a negotiable instrument, so that means it can be transferred from one party to another, ठीक है. That is generally known as endorsement, ठीक है. Let's say this bill of exchange is drawn by A on B, ठीक है. So let's say after some time, suppose that A need to pay payments to C, ठीक है. So they can ट्रांसफर दिस ओनरशिप कि जैसे इस केस में आपका ए इज गोइंग टू रिसीव मनी, ठीक है. सो लेट्स से ए हैव टू मेक सम पेमेंट्स टू सी, सो दे कैन ट्रांसफर ओनरशिप टू दिस सी एज वेल, ठीक है. सो दैट इज जनरली नोन एज एंडोर्समेंट, ठीक है. सो इट इज ट्रू, इट कैन ओनली बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ द drawer bank. No, it is only payable on demand without interest. Because sometime, like in case of like delays or kind of जैसे आप ड्यू डेट अगर पेमेंट नहीं होती है नॉट, ठीक है. सो वी कैन हैव सम काइंड ऑफ नेगोशिएशन ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है. सो उसके ऊपर एक टर्मिनोलॉजी है, विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर वन इन डिटेल. So a bill of exchange is a negotiable instrument that can be transferred to third party by endorsement and delivery. It can be drawn only it can be drawn on a bank or any individual, not necessarily only to the drawer banks, ठीक है.
it is the written order for payments, that is that written order for payment, and its term can specifically specify the payment to made either on demand or after a some certain period. So it can be demand bill or it can be Hussein's bill also, right? Chalo, agla question. Which of the following scenario would result in bill of exchange being considered invalid under the Negotiable Instrument Act 1881 सेक्शन 6 आपका, ठीक है, सॉरी सेक्शन 5, ठीक है. सो सेक्शन 5, सेक्शन 6 विच जनरली डील विद द चेक सिस्टम, ठीक है. सो द बिल इज नॉट साइंड बाय द ड्रॉर, नो. द बिल, it is a case of invalid, ठीक है, null and void, ठीक है. The bill contain an ambiguous date for payments. This is not the reason, ठीक है. The bill is drawn on a non-existing person or entity. This is a situation when it can be null and void, ठीक है. So the bill is drawn in favor of third party, no. So what will be our correct answer? C will be right answer for this one, ठीक है. So a bill of exchange must be drawn on existing person or entity. If it is drawn on a non-existing person, it is invalid. While lack of signature or ambiguous date may affect the enforceability, but doesn't necessarily invalidate the instruments. Drawing a bill on a non-existing third party make it legally void, right? Next one. In case of bill of exchange dishonor due to a non-acceptance, which of the following is true regarding the holders right? ठीक है, तो जैसे कोई बिल आपका इश्यू ड्रॉ किया गया, ठीक है, बाय द ड्रॉर, एंड नाउ the buyer is not accepting that particular one, ठीक है, उसमें आपका नॉन एक्सेप्ट, जैसे बायर ने किसी और को दिया था फॉर द पेमेंट्स, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर वन इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है. तो हम लोग इसमें आपका क्या करेंगे? सो वी कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बिल, ठीक है. सो द होल्डर कैन ओनली क्लेम फ्रॉम द ड्रॉइंग after giving notice of dishonor, no. Drawee is like as matlab, first you have to protest that particular one. In case of bill of exchange, we have there is a like notary, you have to protest that particular one with notary public. This is the sequence, ठीक है. अगर ये promissory note होता तो directly हो जाता, but in case of bill of exchange, first you have to report that particular one with notary public and you have to make a protest. इसके लिए आपको notary charges या others ये pay करने की जरूरत पड़ती है. The holder must wait for the drawer acceptance before initiating any legal action. The holder must accept an offer for an extended payment period made by the drawee. The holder can protest the bill and claim the amount from any prior endorser. ठीक है, जैसे आपका जैसे let's say A draw that bill on B, B pass on to C. ठीक है, so now if C is not accepting or not basically honoring that particular bill, so that payment will be made by the B itself. ठीक है, तो ऐसा जो sequence है, that is generally part of this one. If a bill of exchange is disowned due to non-acceptance case, the holder can protest the bill, which is formal declaration that bill has been disowned. The holder can then claim the amount from any prior endorser or the drawer, depending on the endorsement. ठीक है, next one. यहां से आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है. So Mr. Ram, a business owner, receive a bill of exchange from supplier Mr. Rohit, ठीक है. So basically Rohit draw a bill on Ram, ठीक है, for sorry आपका Ram draw a bill on Rohit for goods purchase, ठीक है. The bill has due date of 60 days. Ram need immediate funds and decided to transfer the ownership to Mr. Joshua, ठीक है. तो basically there is a bill which is drawn by Ram to आपका Rohit, and Ram like the date on this particular bill is 2 months. 60 days के बाद आपका पेमेंट करनी है किसको? रोहित को, राम को, ठीक है. So now Ram need immediate money, so उसने क्या किया? He generally endorsed that particular bill to Joshua, ठीक है. So which of the following concept? So what will be your correct answer? Endorsement, ठीक है. अब तो यहाँ पे एक terminology होती है. This terminology is very 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 important. Maximum time you will see question based on this particular one, ठीक है. जैसे आपका renewal of bill, ठीक है. So what is renewal of bill? Let's say there is a आपका there is a case कि draw a bill for 60 days, ठीक है. The payment period of this particular bill is 60 days, ठीक है.
तो 60 दिन का ये आपका पेमेंट करना है, ठीक है। ऑन 60th डे सपोज दैट ड्रॉई ही वॉन्ट बी एबल टू मेक दैट पर्टिकुलर पेमेंट, ठीक है। उसके पास पेमेंट करने के लिए, जैसे आपका ए who ड्रॉ दिस पर्टिकुलर बिल ऑन बी, ठीक है। सो बी इज बायर एंड ए इज आपका सेलर, ठीक है। ए ने बी के ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ बी को पेमेंट करना है 60 डे में, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। सो व्हाट ही डिड, ही जनरली नेगोशिएटेड विद दिस ए कि सर आप हमें एडिशनल 30 डेज दे दीजिए, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल लेट्स से द अमाउंट इज 15 lakhs, सो राइट नाउ वी विल पे यू 5 lakh, ठीक है, इन कैश। 5 लाख रुपए हम आपको कैश में पे कर देते हैं। फॉर रिमेनिंग 10 lakh यू विल ड्रॉ अ फ्रेश बिल, ठीक है। वो क्या करें, आपका एक फ्रेश बिल आप हमारे लिए ड्रॉ कर दें, जिसपे हम आपको एडिशनल 2% का इंटरेस्ट भी आपका पे कर देंगे। सो दैट काइंड ऑफ सीक्वेंस आपका, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड रिन्यूअल, ठीक है, जहां पे हम बिल को रिन्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। एंडोर्समेंट वी नो। डिसऑनर आपका जैसे ए ड्रॉ बिल ऑन बी, ठीक है। सो बी 60 डे में इसका लाइबिलिटी है कि इसको पे करना है ए को, ठीक है। बट ही वॉन्ट बी एबल टू मेक दैट पर्टिकुलर पेमेंट, ठीक है। उसके पास पैसा नहीं है और उसने अपना हाथ खड़े कर दिया, सॉल्वेंसी वाला केस आपका जो हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज जनरली नोन एज डिसऑन, ठीक है। ऑनरिंग द बिल मीन्स आपका जैसे 60 डे था तो बी ने आपका पेमेंट कर दिया, खत्म, ठीक है। सो दैट इज ऑनरिंग द बिल। इसके अलावा भी जैसे रिटायरमेंट ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज। सो लेट्स हैव अ लुक। ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस के अंदर भी इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि ये यहां से बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछते जाते हैं, ठीक है। सो विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग और राइट, इस तरीके से जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द वन, ठीक है। सो फर्स्ट होल्डर, ठीक है। हु इज होल्डर, ठीक है। सो आपका ड्रॉर, ठीक है। होल्डर कौन होगा, ड्रॉर होगा, ठीक है, जिसने वो बिल आपका ड्रॉ किया। जैसे इन आर केस ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी, सो ए इज होल्डर, ठीक है। सो आपका क्या होगा, ही इज अ पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी ऑन ड्यू डेट, ठीक है। जैसे ए ने बी को सामान बेचा था तो ए इज होल्डर इन दैट पर्टिकुलर केस। नाउ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। To fulfill this particular condition, there are three conditions regarding the holder in due course, ठीक है। एक तो सेम आपका ये है, जैसे A sell some goods to B, तो कुछ इनवॉइसेस उनके पास हैं एज अ प्रूफ फॉर दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर A endorse that particular bill to C और D, तो आपका जो एंडोर्समेंट हुई है वो आपका जो डेज है उनसे पहले हो जाने चाहिए। अगर 60 डेज है तो उससे पहले हो जाना चाहिए, और आपका उसको प्रूव करने के लिए जो नाम या अदर्स है उसमें आपका लीगल जो तरीके हैं वो फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। सो द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिनको कुछ कंडीशन आपका सेटिस्फाई करनी होती है। ही ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, दैट मींस देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ गुड्स और देयर इज सम सेल इन दैट इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो कैसे प्रूव करोगे, थ्रू द इनवॉइसेस, ठीक है, कि हम ए ने बी को कुछ सामान बेचा, ऐसे नहीं कि हवा में उसको आपका ड्रॉ कर दिया गया। He become holder of instrument before the maturity if it is 60 days. So before 60 days, he had no cause to believe that any defect exists in the title of the person from whom he derive this title, ठीक है। तो वो आपका ड्रॉर ड्रॉवी टू ड्रॉवर है, या फिर आपका जैसे जो ड्रॉर है उसने किसी को और एंडोर्स किया है तो वहां पे, ठीक है। ये कंडीशंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। अगला बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, दिस इज अ स्टेज ऑफ ऑनरिंग द बिल, ठीक है। तो जहां पे पेमेंट्स के लिए उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। द बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन फॉर एन अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ऑफ द बिल, ऑनरिंग द बिल, सो दिस इज एक्टिविटी डन बाय बैंक, ठीक है, जहां पे उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। व्हेन ड्रॉई पेज, ठीक है, ड्रॉई पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट, so this is generally known as honoring the bill. Dishonor क्या हो गया, जो वो नहीं पे कर पा रहे, ड्रॉई ऑफ द बिल is unable to or refuse to make payment on due date, so that is not known as disowning the bill. Discounting of bill, discounting of bill क्या होता है आपका, जैसे let's say A draw a bill on B for 60 days. Now B come up with some sort of proposal कि we will make this particular payment in 30 days only if you'll give us 1% discount on overall bill or invoice, ठीक है। तो A ने B के ऊपर बिल ड्रॉ किया था 60 दिन के लिए। B ने बोला कि हम आपको 30 दिन में ही पेमेंट कर देते हैं, बट आप हमें क्या करो, जो ओवरऑल बिल का अमाउंट है उसमें 1% का डिस्काउंट दे दो, ठीक है।
तो अगर वो एग्री कर जाता है ड्रॉअर आपका ए, तो दैट इज जनरली उन दोनों के बीच में जो आपका नेगोशिएशन हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग द बिल, ठीक है। सो बिफोर ड्यू डेट of the bill, the holder may endorse the bill in favor of banker, get immediate cash, okay, this is also called discounting. अब ये बैंकर के टर्म्स में भी हो सकता है, ठीक है। इट इज एक्चुअली वॉट एवर आई टोल्ड यू ना, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रीवेट ऑन बिल, ठीक है, माई बैड, ठीक है। थोड़ा सा उसको आपका जो मैंने आपको बताया, ए ड्रॉ बिल ऑन बी फॉर 60 days एंड ए बी इज making promise कि we will make this particular payment on 30th days if you give us 1% discount, ठीक है, that is called rebate on bill, ठीक है। आपका discounting is similar to that particular one, but what is happening here, बैंक there is an involvement of bank itself, ठीक है, जहां पे बैंक क्या कर रहा है, जैसे ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जो ए है ये इसको बैंक को लेके गया, उसने बोला कि आप इसको पहले हमें इनकैश कर दो 60 डेज से पहले। यहाँ पे ड्रॉअर और आपका ड्रॉई ना होके बल्कि ड्रॉअर और बैंक के बीच में जो आपका नेगोशिएशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल, द होल्डर में एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ द बैंकर एंड गेट इमीडिएट कैश, ठीक है। तो उसने बोला लाइक दिस इज जनरली यूज फॉर द let's say if that draw they need funds for working capital purpose in all, ठीक है। So where basically one bank is handling all the transaction of that particular bank, international trade में बहुत ज्यादा बार होता है, ठीक है। अब आता है आपका एंडोर्समेंट ऑफ बिल, इस पे हमारा क्वेश्चन था। ट्रांसफर ऑफ बिल टू सम अदर पर्सन बाय होल्डर, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल कुछ नहीं है, लेट्स से देयर इज ए ड्रॉ बिल ऑन बी, ठीक है, फॉर 60 days, बी मेड द पेमेंट विद इन 45 days, सो आफ्टर लाइक जैसे उसने 45 दिन में पेमेंट किया, तो दैट बिल विल नोन एज रिटायर्ड, ओके। सो व्हेन ड्रॉई पे द बिल बिफोर द ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल मैंने आपको समझाया अभी कि जैसे द ड्यू डेट वाज 60 days, ठीक है, एंड जो बायर है उसके पास फंड्स नहीं है, सो दे जनरली आस्क टू द सेलर की और ड्रॉअर की आप हमें 15 days या 1 month का एडिशनल टाइम दीजिए। अभी जो टोटल अमाउंट है उसमें से, जैसे इन आर केस ए ड्रॉ बिल ऑन बी फॉर 15 lakhs, बी दैट ऑन द 60th day बी told to A कि I'll make you 5 lakh rupees cash payment right now, for remaining 10 lakh please draw a fresh bill with an interest of let's say 2%, ठीक है, that kind of condition, ठीक है। So when a drawee unable to meet the bill on due date, he request, ठीक है, he requests the drawer to accept a part of the bill amount in cash and for the balance to draw on him a fresh bill together with the interest, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ बिल, ठीक है। अकोमोडेशन बिल क्या होता है ना, बेसिकली लाइक जैसे होल्डर एंड ड्यू कोर्स में देयर वाज वन कंडीशन की द बिल शुड बी ड्रॉ ऑन, बेसिकली देयर वाज वन पॉइंट, ठीक है। सो द बिल शुड बी ड्रॉ ऑन वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ठीक है। बट अकोमोडेशन ऑफ बिल इज लाइक कि जैसे देयर आर टू बिजनेसेस, ठीक है, या दो बिजनेस हैं ए एंड बी, ठीक है। सो ए बी रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ फंड्स, ए ने उसको आपका ड्रॉ करके बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे दिया, देयर इज उनके बीच में कोई भी आपका सेल परचेज का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। सो व्हेन वन पार्टी एक्सेप्ट बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प, द बिल इज टू सेट टू बी अकोमोडेशन। बहुत बार पूछा जाता है अकोमोडेशन, ठीक है। जैसे ए ने बिल बी के ऊपर ड्रॉ किया क्योंकि ए को फंड्स की रिक्वायरमेंट थी और बी एक्सेप्टेड दैट पर्टिकुलर वन कि ठीक है फॉर दिस टाइम बेस वी विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अगला आपका नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक से लेके आपका नोटिंग प्रोटेस्ट, नोटिंग चार्जेस, दीज आर द केसेस स्टेजेस ऑफ योर डिसऑनर, ठीक है। तो अगर कोई बिल डिसऑन हो जाता है, डिसऑन होने का मतलब कि जो ड्यू डेट था उसमें पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, या जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, सो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइल दैट लीगल हियरिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वन, हमें उसमें लीगल एक्शन आपका लेना पड़ेगा। फॉर दैट देयर इज वन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट अथॉरिटी दैट इज जनरली नोन एज नोटरी पब्लिक, ठीक है। नोटरी पब्लिक क्या है, एक सरकारी आदमी है जिसके पास आप जाके ये केस फाइल करोगे। नोटिंग क्या होगा, उसके द्वारा आपका जो केस फाइल किया जाएगा, ठीक है। और नोटिंग चार्जेस क्या होंगे, इसके लिए वो कुछ चार्ज लेगा। प्रोटेस्ट क्या होगा, नाउ फाइनली योर केस विल रजिस्टर्ड, ठीक है। तो प्रोटेस्ट वाले जो क्वेश्चन आपके थे, तो वन बाय वन, he is an officer appointed by government to exercise the power and functions relating to protesting
ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द डिसऑनर, ठीक है। आपका नोटिंग इज on dishonor of bill, the holder in due course present the bill to a notary public to make necessary entries, ठीक है। These entries are generally known as noting on a separate paper attached to the bill. This is called noting. Protest when the promissory note or bill of exchange has been disowned for non-acceptance or non-payment, the holder may within a reasonable period cause such as dishonor to be noted and certified by a notary public. Such certificate is generally known as protest, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ये आपका मैंडेटरी होता है, प्रोमिसरी नोट के अंदर इसकी उतनी जरूरत आपको नहीं पड़ती है, ठीक है। नोटिंग चार्जेस अमाउंट पेड टू नोटरी पब्लिक फॉर रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस, ठीक है। रीबेट ऑन बिल, अभी मैंने समझाया था आपको, ए वुड ड्रॉ बिल ऑन बी, B for 60 days. ठीक है, B is saying कि we will make this particular payment within 45 days if you give us rebate of 1% on overall bill. ठीक है, तो जैसे when bill is paid by a drawee before due date, some allowances is given to him, that is generally known as rebate. I hope this is clear to all of you guys. Very very important part. ठीक है, so believe me guys, if you'll open previous year papers for last 2 years, that means 4 session, ठीक है, you'll definitely see question around these particular things. तो और ये आपको IAN IFS के अंदर भी हेल्प करेगा, ठीक है। दिस इज द टॉपिक विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन IAN IFS as well as in your AFM subject, ठीक है, in some portion in PPB as well. So multiple places में है, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, now we will practice another set of question, ठीक है। Under the Negotiable Instrument Act 1881, a bill of exchange must contain which of the following element to be considered valid? So it must be payable only at a future date. It must be signed by the drawee. It must be contain an unconditional order to pay a specific sum. It must be payable to a specific person only. ठीक है? Under the this bill of exchange must contain which of the following element? It must be payable only at future date. This is true. It must be signed by drawee, ठीक है। It must contain an unconditional order to pay a certain sum of amount, ठीक है। Unconditional means there is no if and but, ठीक है। So जो भी amount होगा वो exact होगा, ठीक है। It must be payable to a specific person or entity itself. These all are correct, ठीक है। सो ये सारे ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अदर्स, दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ ग्लिच है, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ ड्रॉई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर हैज राइट टू, सो अगर आपका ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, या जिसको एंडोर्स किया गया वो नहीं ले रहा है, ठीक है, तो प्रोटेस्ट द बिल एंड क्लेम द डैमेज, पहला ही अभी होगा, अभी हमने समझा था। एक्सटेंड द बिल फॉर एडिशनल टाइम पीरियड, ट्रांसफर द बिल टू अनदर पार्टी, फाइल द सूट। हाँ, तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? दिस इज द राइट वन, ठीक है। तो नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, नोटिंग चार्जेस प्रोटेस्ट करेंगे और आपका कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट आपका पेमेंट्स होगा, ठीक है। सो दैट इज द वन। नेक्स्ट वन, which of the following are most commonly used instrument of credit? So as per your unit, आपका अगर आप अपनी यूनिट के हिसाब से देखते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट बोथ आर जनरली यूज फॉर द यूज एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। वन, अगर आप बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का, इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑर्डर विच इज इशूड बाय द ड्रॉर टू ड्रॉई, ड्रॉर ऑन ड्रॉई और क्रेडिटर ऑन आपका डेटर्स, ठीक है। सो और इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट दिस इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर एंड दिस इज ड्रॉन बाय द डेटर, ठीक है। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, 2 मंथ, देखो जैसे इसमें क्या था, 2 मंथ लेटर आई प्रॉमिस टू पे यू, सॉरी, in case of bill of exchange it is a sort of order. 2 months later I order to pay you, 2 months later so I order to pay me or my order, 2 months later I order to pay you, pay me my or my orders worth rupees 15 lakh for value received, ठीक है, that is आपका bill of exchange. But in case of promissory note it is drawn by the बायर, ठीक है, जो बायर है वो खुद आपका प्रॉमिस कर रहा होता है, ठीक है, कि 2 मंथ लेटर आई प्रॉमिस टू पे यू और योर ऑर्डर वर्थ रुपीज दिस अमाउंट फॉर वैल्यू रिसीव, सो दिस इज द वन, ठीक है। तो ये सेक्शन 4 में आता है और ये आपका सेक्शन 5 के अंदर आता है, ठीक है। सो
इन अ बिजनेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्ले अ वेरी दिस फॉर, मतलब एक सिंपल सा इनका जो यूज है दैट इज द वन, ठीक है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दिस वन, ठीक है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्स which promise payment to the assignee, the person whom it is assigned or to given, or specified person or entity. In India, Negotiable Instruments Act 1881 responsible for governing negotiable instrument, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस के दौरान काफी डिटेल में पढ़े हैं। सो वी हैव प्रॉमिसरी नोट अंडर सेक्शन 4, अंडर सेक्शन 5 आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, थर्ड वन इज चेक सिस्टम अंडर सेक्शन 6, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से है कि जैसे 2 month आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹4 lakh only for value received, and there are three parties part of this particular one, and acceptance by the debtor is necessary, ठीक है। जो आपका बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट होता है उसमें एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, बट इस केस में जरूरी है, ठीक है। जैसे एक्सेप्टेड, ठीक है, ये यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो जैसे एक आपका लेट्स सपोज ए सेल गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट फॉर 10,000, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी, बी एक्सेप्ट द सेम, ठीक है। सो ये आपका जो सिचुएशन है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे मिस्टर सुरेश, ड्रॉर कौन है आपका मिस्टर सुरेश, ड्रॉई कौन है आपका मिस्टर मेहता, ठीक है। अमाउंट है आपका 10,000, डेट ऑन बिल है आपका 10th of March 22, ठीक है। एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है आपका 15 March 22, ठीक है। पीरियड कितना है आपका 2 months। तो यहाँ पे क्या होगा 2 months आफ्टर पे मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो यहाँ पे जो आपका डेटर है, ठीक है, डेटर कौन है हमारे केस में ड्रॉई, ड्रॉई इक्वल टू डेटर, तो मेहता जी जो है उनका एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी इन दिस पर्टिकुलर केस आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, जस्ट गिव मी 1 minute, हाँ। ऑलराइट, तो ये आपका डेफिनेशन है, क्विकली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, ठीक है। ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। देखो डेफिनेशन से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे डिफाइन किया गया आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। पहले तो ये क्या होगा आपका इस तरीके से लिखा होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर मींस ये जो 10,000 है ना, दिस इज फिक्स, देयर इज नो इफ एंड बट इन दिस केस, कि ऐसा होगा तो ये अमाउंट 1.5 आपका 15,000 होगा, ऐसा होगा तो ये अमाउंट 5,000 का, नो नथिंग लाइक दैट। सो दिस इज फिक्स थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे कोई इफ एंड बट आपका काम नहीं चलेगा। तो पहले तो राइटिंग में होगा अनकंडीशनल ऑर्डर, साइन बाय मेकर, मेकर मींस क्रेडिटर, ठीक है, आपका ड्रॉर जिसको हम लोग सॉरी क्रेडिटर, क्रेडिटर जिसको हम लोग आपका सेलर बोलते हैं, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, उसको खुद के नाम पे, या द ऑर्डर टू सर्टेन पर्सन किसी और के नाम पे, और बियरर आपका जो भी उसको बियर करेगा उसका वो होगा, इस दिस तरीके से, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स, दीज फीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, प्लीज गो थ्रू दीज पर्टिकुलर वन क्लियरली। ये जो फीचर्स है ना, दीज आर डायरेक्टली अलाइन विद योर डेफिनेशन। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इंपॉर्टेंट टू हैव बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग, it must contain a confirm order to make payment, that means it is an unconditional order. The order should not have any kind of condition. The bill of exchange amount should be definite, fixed amount होना चाहिए, fixed date आपका होना चाहिए. The bill must be signed by both the parties, drawer and drawee, ठीक है, but acceptance of drawee is must, ठीक है. The amount the amount stated on bill should be paid on demand. ये हो सकता है जब वो जिस डेट पे मेंशन उस पे, या उसके कुछ दिनों के बाद, दैट इज नोन एज उसेंस, ठीक है। एक्सपायरी डेज आपका 60 days या अदर्स जो भी डेज आपके, ठीक है। चलो नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज, तो हम इसको पहले से पढ़ रहे हैं, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे, ठीक है। सो ड्रॉर इज जैसे ए ड्रॉ बिल ऑन बी, ठीक है। सो ए इज ड्रॉर, ठीक है, क्रेडिटर आपका, जो सेलर है वो आपका क्रेडिटर है, वो आपका ड्रॉर है, ठीक है। सो बेसिकली हु इज गोइंग टू रिसीव द बेनिफिट, जिसके अकाउंट में पैसा आने वाला है, द ड्रॉर इज मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल इज साइंड बाय ड्रॉर, a creditor who is entitled to receive payment from the debtor can draw a bill of exchange, ठीक है। दूसरा आपका ड्रॉई, जो आपका बायर है मींस डेटर है, ठीक है। सो ड्रॉई इज द पर्सन अपॉन whom the bill is
drawn, ठीक है. So drawee is debtor who has to pay for this particular one. He is also known as acceptor. कई बार आपको पेई भी मिलेगा. In most of cases drawer is pay, बट कई बार आपका पेई हो सकता है जब ये किसी बैंक को या किसी और पार्टी को. द पर्सन इज द पे इज द पर्सन टू होम पेमेंट हैज टू बी मेड. द पे मे बी ड्रॉर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी. ठीक है, जैसे हमने ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बट वो जो बिल उसने ड्रॉ किया वो एबीसी बैंक के नाम पे किया या पार्टी सी के नाम पे किया. सो दैट इज जनरली नोन एज ड्रॉइंग. ठीक है, नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ बिल में ये सारे, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको इकोनॉमिक्स में आईएन आईएफएस में बहुत पूछा जाता है. एंड वी हैव डिस्कस दीस पर्टिकुलर वन इन डिटेल. ठीक है, हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं इसलिए मैंने रखे हैं जो आप याद कर पाओ. ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बिल आपका ऐसे बिल जो सपोर्टेड होंगे उसके इनवॉइस के साथ. ठीक है, डिमांड बिल विच इज पेबल ऑन डिमांड, जब उनको प्रेजेंट किया जाएगा तभी आपका पेमेंट होगा. उसेंस बिल दिल हैव अ सर्टेन डेट लाइक 60 डेज 90 डेज के बाद आपका पेमेंट. इनलैंड बिल आपका विद इन कंट्री. ठीक है, सो विद इन कंट्री आपका सीधा इंडिया में. क्लीन बिल आपका, क्लीन बिल इज इट्स अपोजिट ऑफ डॉक्यूमेंट्री बिल. नो डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड. फॉरेन बिल जो अदर कंट्रीज में भी आपके होंगे. ठीक है, इंडिया एज वेल एज फॉरेन. ठीक है, इसके अपोजिट में ट्रेड बिल आपका जो ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज है. सप्लाई बिल बेसिकली आप ट्रेड बिल जैसे एलसी अदर्स इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं. लेकिन सप्लाई बिल आपका जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से अदर्स होते हैं उनके रेफरेंसेस में आपका रहते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जल्दी से आपके ये डॉक्यूमेंट्स डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं. सो यू कैन हैव अ क्विक लुक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे. ये आपका काम होगा पीडीएफ के थ्रू आप इनको रिवाइज करें. क्यों मैं आपको बार बार ये दिखा रहा हूँ, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. ठीक है, ड्यूल बेनिफिट आईएन आईएफएस एज वेल एज योर एएफएम सब्जेक्ट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which of the following scenario illustrate the concept of rebate in the bill of exchange. याद है rebate, rebate का मैंने आपको एक केस समझाया था. ठीक है, so what is rebate? A draw a bill on B. ठीक है, इसका मतलब है A is a seller और he is a creditor. ठीक है, B is buyer और आपका डेटर. ठीक है, तो अब A ने B के ऊपर बिल ड्रॉ किया है. ठीक है, दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस. I order to pay me or my order worth rupees 90 lakh for value received. ठीक है, इस तरीके से. एंड दिस बिल इज एक्सेप्टेड बाय बी. ठीक है, बी ने इसको एक्सेप्ट भी किया. ठीक है, और आपका जो ए है क्रेडिटर उसका भी यहाँ पे सिग्नेचर है. तो अब ये लेट्स से दिस बिल इज फॉर 90 डेज. ठीक है, 90 दिन का ये बिल है आपका. ठीक है, आई ऑर्डर टू पे मी और माई ऑर्डर वर्थ रुपीज 50 lakh आफ्टर 90 डेज. ठीक है, फॉर वैल्यू रिसीव दिस दिस दिस. अब रीबेट ऑन बिल क्या होता है? 90 डेज का. ये जो बिल है आपका ये कितने का है? 90 डेज का है. ठीक है, नाउ this A is making some sort of proposal to with A. B is making a proposal to A. इसने बोला कि सर 90 दिन नहीं, we will make this particular payment on 30th day. ठीक है, हम 30 दिन में ही आपको पेमेंट कर देते हैं अगर आप हमें 1% का डिस्काउंट दे दे. तो रीबेट इक्वल टू डिस्काउंट, अगर आप हमें इतने का डिस्काउंट दे दे तो दैट इज कॉल्ड रीबेट ऑन बिल. तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. एक्स रिसीव अ बिल फ्रॉम हिज सप्लायर with a due date of 30 days. He decided to pay the bill on 25th day and receive a 5% discount on total. पहला ही ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है. ठीक है, so first option will be right answer for this one. Next one, dash is a written undertaking by buyer. Buyer equal to debtor. ठीक है, so written undertaking by buyer means debtor to make payment on a specific date. Something like this. आपका I promise to pay you or your order worth rupees 15 lakhs after let's say 30 days for value received. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका ये जो पैसा है मैं आपको इतना पैसा पे करूंगा इतने दिनों के बाद, जो किस चीज के लिए, जो सामान मुझे मैंने आपसे खरीदा है. सो इट इज अ केस ऑफ बिल सॉरी प्रॉमिसरी नोट. ठीक है, सो ये क्या होता है आपका प्रॉमिसरी नोट. जैसे फॉर्मेट आप देख सकते हैं जल्दी से. 2 months after date, I promise to pay you means Mr. Suresh or his order a sum of rupees 10,000 only for value received. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज होती हैं आपका. एक होता है I just missed that name. ठीक है, सो दो पार्टीज आपका
जो एक एक प्रोमिसर आपका होता है, ठीक है, और दूसरा आपका बेनिफिशियरी जो होता है, ठीक है। सो प्रोमिसरी नोट, एक बार जल्दी से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। रेफर्स टू अ रिटन promise to its holder by an entity or an individual to pay a certain sum of money by a pre-decided date, ठीक है। इसका जो दिस इज द डेफिनेशन एज पर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, फिर से डिकोड करेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका राइटिंग में है। तो जब एक क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, तो वहां पे ये लाइन आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बोथ आर रिटन डॉक्यूमेंट्स, मतलब ठीक है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में भी सेम था, इसमें भी। बोथ आर अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है। एक आपका प्रॉमिस, एक ऑर्डर, ठीक है। अंडरटेकिंग साइन बाय मेकर, एंड हु इज मेकर इन दिस केस, ड्रॉअर, ठीक है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ये फॉर्म होता है, ठीक है। मेकर एंड पे, सॉरी आई मिस दीज टू नेम, ठीक है। तो मेकर कौन हो गया आपका, ड्रॉअर, एंड पे कौन हो गया आपका, क्रेडिटर, ठीक है। सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। Promissory note. Maker or drawer is individual or entity to who make or draw the promissory note with a promise to pay a certain sum of money. Payee is the person in whose favor the promissory note is drawn, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कंपैरिजन पे ही है। ऐसा क्वेश्चन आपको बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू सिमिलरिटीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट है, उनमें जो सिमिलरिटीज होती हैं, उनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जल्दी से। बोथ आर अनकंडीशनल ऑर्डर, ट्रू। In the bill of exchange, there are three parties, true. In promissory note, there are only two parties, ठीक है। ड्रॉ, ड्रॉई, पे, आपका मेकर एंड पे, ठीक है। अगला आपका द बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड बाय डेटर, नो, ये गलत है। ये क्या होना चाहिए था, क्रेडिटर होना चाहिए था। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय डेटर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इन केस बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस बाय डेटर इज नेसेसरी, बिल्कुल सही। प्रोमिसरी नोट में आपका इसका कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, तो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। आई होप यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पे ये चार्ट आपको हेल्प करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे मेड बाय क्रेडिटर्स, एक्सेप्टेंस बाय डेटर इज नेसेसरी, देयर इज थ्री पार्टीज, ऑन डिसऑनर आपका नोटरी पब्लिक, ठीक है। अनकंडीशनल सेम राइटिंग में रहेगा, मेड बाय डेटर, no acceptance is required, there are two parties, noting is not necessary, ठीक है। जैसे नोटरी पब्लिक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में था, यहाँ पे उसका जरूरत नहीं होगा। नेक्स्ट वन, which of the following statement is are incorrect with regard to a promissory note, ठीक है। promissory note के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो क्या होगा, इट इज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ट्रू। contain unconditional order signed by maker means debtor, that means it is true, certain sum of money, it is defined and अच्छा ओके, तो क्या होना चाहिए था आपका सेक्शन 4, ठीक है। it is defined under section 4 of negotiable instrument act, not 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। when drawee of the bill is unable or refuse to make payment on due date, the bill is said to be disowned, ठीक है। अगर वो आपका पेमेंट नहीं करा तो डिसऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हमने वहां पे पढ़ी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन, रीजन बीइंग you will definitely see question based on these areas, okay, so this is it। तो ये guys, ये आपका, I hope आप सबने enjoy किया होगा सेशन को, और अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा होगा, आई कैन गारंटी कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि हम आपको 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास दे रहे हैं, नो, इट्स अ 30 मिनट टू 40 मिनट ऑन एन एवरेज 30 मिनट क्लासेस जो रिक्वायर्ड है, जो उस टॉपिक का मेजर है, क्रक्स है, उसको आपको बताएंगे। उसको ध्यान में रखो, आपके लिए वो काम हमने किया समरी बनाने का, ठीक है। सो नाउ अब ऐसा नहीं कि आप उसको एलिमिनेट करें, उसको उसमें मतलब थोड़ा बहुत एलिमिनेशन करोगे, मुझे पता है वो हमने उसके लिए भी स्कोप छोड़ा हुआ है, बट हाँ, जो कोर एरियाज हैं वो बार बार हाईलाइट किए जाएंगे, उनको आपको करना है। तो अगर आप वो देख के इसको करेंगे तो आसानी से चीजें बनेंगी, अंडरस्टूड। दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन कनेक्ट मी ओवर देयर फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, ठीक है। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए आप जस्ट फील फ्री टू टेक्स्ट मी ओवर देयर, ठीक है। यू कैन पिंग मी
आप मुझे ग्रुप पे लिख सकते हैं या डायरेक्टली पर्सनल मैसेज आपका कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू लिख के आपका, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, so please do subscribe and do share with your friends. Okay, so I'll see you tomorrow at same time 7 p.m. with one new topic. Okay, so in next session we will discuss the multiple topic, because next 3 topics are very small topics, so I'll try to come up with a lengthy video for all the 3 topics. Okay, so this is it guys. Once again thank you for joining this session. Bye bye, take care all, and all the very best for your preparation. Thank you.